As you all are aware that we have already started with the module 5. In that module 5 we have covered the 3 cases till date. Case 1 was based on the determination of steady state amplitude for the object carrying simple harmonic motion. Case 2 was related to determination of amplitude, forced amplitude due to eccentricity. Case 3 was related to forced vibration due to support excitation. Okay, so you all are well aware about these 3 cases. Now today I will start with the case 4. Okay, so there are multiple cases as I told you in module 5, and we are into the halfway or midway of module 5 completion. Okay, so what is case 4 all about? Just I have drawn a rough sketch for you so that you can understand the things online. So let's assume there is one road surface or a surface with the sinusoidal waveform. Okay, एक surface है जिस surface का जो waveform है वो sinusoidal form में है. Okay, now उस sinusoidal waveform में जो सबसे lowest point होता है उसको trough बोलते हैं. trough, TROUGH. ओके, और उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको पिक बोलते हैं, पिक पॉइंट. ओके, नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम ट्रफ टू पिक इज बीइंग डेजिग्नेटेड बाय 2y. ठीक है, ट्रफ से लेके पिक के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको 2y से डेजिग्नेट करते हैं, सिंबल 2y. और अगर आप मीन पोजीशन से पिक तक का डिस्टेंस मेजर करोगे तो देन इट बिकम y. ओके, and the distance between two consecutive peak points is called as wavelength. Okay, so the distance between two consecutive peak points is called as what? Wavelength. And that wavelength is being designated by the symbol lambda. Okay, so this is being symbolized with the lambda. Okay, so I have explained you what is trough, what is peak, what is the meaning of 2y, and what is the meaning of y, what is wavelength. Okay, now imagine the object which is being placed on this sinusoidal waveform is this one. That object has a spring, damper and mass attachment. So the whatever the wheel, or you can say the surface point, or the element which is in contact with the surface, it will have a displacement y. It will have displacement y. But as it is, mass is being separated with that element with the help of spring and damper. So अगर इसका displacement y होगा तो इसका displacement y नहीं होगा, it will have some another displacement. Let's say that is x. अब ये दोनों का displacement अलग इसीलिए होगा just because यहाँ पे आपने spring और damper लगा रखा है. तो ये एलिमेंट जितने भी अमाउंट से वाइब्रेट होगा, जितने भी अमाउंट से डिस्प्लेस होगा, y से होगा. क्यों? क्योंकि ये देख सकते हो मीन से उसका पिक तक का जो डिस्प्लेसमेंट है y है. इमेजिन करो एक कार है, वो कार ट्रैवल होके आ रही है. अब वो कार आ रही है तो मीन सरफेस पे ही चलेगी ना, रोड के अंदर से थोड़ी कार आएगी. ओके, आई होप यू एग्री दिस. ना इसमें से जो कार आएगी मीन सरफेस से, एंड देन इट विल ट्राई टू गो अप. So how much it will go up? It will go up by the amount y. Okay, that's why I'm saying this element will have displacement y, but the same displacement will not obtain at the mass. Okay, so this will have some different displacement that is being written by x. So I hope आपको ये पूरी ड्राइंग समझ में आई रहेगी, बिकॉज इस ड्राइंग के बेसिस पे ही आपको आगे वाले फॉर्मूलेज लगने वाले हैं. ठीक है, सो यू कैन सी हियर amplitude ratio. There is one formula which is being symbolized or given by x upon y. Now what is x? This displacement. What is y? This displacement. And this displacement is nothing but equal to distance from mean to the peak point. Okay, so this is amplitude ratio which is given by x by y, and this is equal to under root of 1 plus 2 zeta r the whole square upon under root of 1 minus r square the whole square plus 2 zeta r the whole square. So ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ओके, तो अब इसके अंदर लगने वाला r जो है ओमेगा बाय ओमेगा n से मिलेगा, जैसा हम पहले भी करते आए हैं. इसमें जो ओमेगा है वो मिलेगा 2 पाई f से, जो हमने पहले किया है.
अब जो एफ है, एफ मिलेगा विद द फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा. ओके, दैट लैम्बडा इज नथिंग बट इक्वल टू वेवलेंथ. लैम्बडा को ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, जो मैंने ड्राइंग में बताया. ठीक है, तो ये पूरी मैंने एक फॉर्मूले लिस्ट आपको दे रखी है. इसके अंदर जो लगने वाला जीटा है उसको तो आप जानते ही ऑलरेडी. आर को भी मैंने बता दिया. ओमेगा जो आने वाला है 2πf, और एफ कैसे निकालना है, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ करके निकालना है. ओके, नाउ यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन कि सर केस 1, केस 2, केस 3 में कीवर्ड्स होते थे, या फिर हमको आइडेंटिफाई करने में इजी होता था कि ये न्यूमेरिकल कौन से केस को बिलोंग करता है. तो इस वाले केस में क्या कीवर्ड्स है, तो मैं आपको बता दूं, इस केस में कीवर्ड जो है वो है वेवलेंथ. अगर आपको क्वेश्चन में वेवलेंथ वर्ड दिखता है, ठीक है, मैं वापस कह रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में वर्ड वेवलेंथ दिखता है तो आपको केस 4 सॉल्व करना है. ओके, so please remember this or note down this keyword somewhere in your notebook. For case 4 your keyword is a wavelength, and for wavelength you have to follow the case 4 entire concept. Okay, now let's start with the numerical so that you will get a clear idea about the things. So I request all of you to first read this statement by you on, then I will read it for you. क्योंकि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो एटलीस्ट 5% चीज़ें आपके दिमाग में फिट होगी. सो फर्स्ट प्लीज रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. Okay, now let me read it for you. A vehicle has a mass of 1200 kg, so the total mass value is given 1200 kg. The suspension system has a spring constant of 400 kilonewton per meter. Now spring constant, you know that this is called as a stiffness. So in this question, stiffness is given to you 400 kilonewton per meter. Damping ratio is of 0.5, means zeta. Zeta is given to you as a 0.5. The vehicle speed is 20 km per hour. This is not 100. It was a wrong statement written there. So ये word value मैंने cut की है 100, and the value is 20 km per hour. Okay. Determine the displacement amplitude of vehicle. So the determine the displacement amplitude of vehicle is nothing but x. हमने फॉर्मूले में जो देखा ना x upon y, तो उसमें जो न्यूमरेटर है x, वो ये वैल्यू है. डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द व्हीकल. द रोड सरफेस वैरीज साइनोसॉइडली विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.05 मीटर एंड अ वेवलेंथ ऑफ 6 मीटर. सो यू कैन सी दीज आर द बेसिक कीवर्ड्स. पहला तो वेवलेंथ देखो डायरेक्टली आया 6 मीटर. ओके, अब अगर क्वेश्चन में वेवलेंथ ना दिया हो और ऐसा भी बोला हो रोड सरफेस वैरीज साइनोसॉइडली, स्टिल आई विल यूज केस 4. तो अगर मैं समराइज करूँ तो केस 4 में दो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं. कीवर्ड्स 1, रोड सरफेस वैरीज साइनोसॉइडली. कीवर्ड 2, इट हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 6 मीटर. ओके, सो दो कीवर्ड्स पे फोकस रखना. मैं वापस कहता हूँ, रोड सरफेस वैरीज साइनोसॉइडली एंड वेवलेंथ. ये दो कीवर्ड्स अगर आया तो केस 4 आपको यूज़ करना है. अभी आप देख सकते हो, आपको मास का वैल्यू 1200 kg दिया है, स्टिफनेस 400 किलोन्यूटन पर मीटर दिया है, तो उसको मैंने 400 इंटू 10⁻³ करके न्यूटन पर मीटर यूनिट में लाया. जीटा की वैल्यू 0.5 दी गई है. वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज 20 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 3600. सो दैट विल कम इंटू मीटर पर सेकेंड. आपको रोड सरफेस का एम्पलीट्यूड दिया है, तो अब ये जो रोड सरफेस एम्पलीट्यूड है उसी को हम y बोलते हैं. ठीक है, वो जो एम्पलीट्यूड रेशियो का फॉर्मूला था ना x/y, उसके अंदर जो डिनोमिनेटर था वो था रोड सरफेस का एम्पलीट्यूड, जो कि यहाँ पे मेंशन है. इसका मतलब आपको y का वैल्यू दिया है, आपको वेवलेंथ दिया है, मतलब लैम्बडा दिया है, तो ये आपके पास वैल्यूज है. अभी ये मैंने वापस फॉर्मूले लिस्ट ही लिखी है. इसमें से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है.
अब अगर x फाइंड करना है तो इसके अलावा बाकी सारे टर्म्स मुझे पता होने चाहिए। तो आप देखो y की वैल्यू आपको पहले से दी गई है, जीटा की वैल्यू आपको पहले से दी गई है, सिर्फ आपको r की वैल्यू निकालनी है। अब अगर r निकालना है तो ओमेगा बाय ओमेगा एन का फॉर्मूला होता है। अब ओमेगा और ओमेगा एन दोनों फाइंड करेंगे हम, ठीक है। बट उसके पहले आप देखो ओमेगा एन कैसे निकलेगा, हमारा जनरलाइज फॉर्मूला जो हम मॉड्यूल 3-4 से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, दैट इज अंडर रूट के अपॉन एम, अंडर रूट के बाय एम। So the value of K is known to you, that is 400 into 10⁻³ Newton per meter. Value of M, that is total mass, is 1200 kg is also given to you. तो आपको यहाँ से ओमेगा n मिल जाएगा 18.25 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, once you get the value of omega n, then you have to find out for omega, which is 2 pi f. And I told you f का वैल्यू कैसे निकालना है। It has been designated by the formula v upon lambda, that is velocity upon lambda. And now you know that velocity का value यही है ना, 20 into 10⁻³ upon 3600 मीटर पर सेकेंड, that is 5.55 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू वेलोसिटी की न्यूमरेटर में आ गई और डिनोमिनेटर में लैम्बडा आएगा जो कि 6 मीटर है, तो यहाँ पे 6 मीटर आ जाएगा। तो आपको ये वैल्यू 0.925 हर्ट्ज करके मिल जाएगी। तो आपको अगर ओमेगा चाहिए तो इसमें एफ़ की वैल्यू जो एफ़ था वो सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको ओमेगा इन रेडियंस पर सेकंड आ जाएगा। तो आर इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन, आपको ओमेगा मिल चुका है और ओमेगा एन आपने यहाँ पे निकाला था, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ यू कैन सी दैट इन दिस फॉर्मूला वी आर लुकिंग फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, सो दैट वी शुड नो ऑल अदर वैल्यूज़। तो वाई आपको पता था जो कि 0.05 मीटर है, जीटा आपको पता है जो कि 0.5 है, आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली जो कि 0.318 है। तो अब सारी वैल्यूज़ पता है मुझे, जस्ट इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे किया है, सिंप्लीफाई करके मैंने फाइनल वैल्यू भी निकाली है जो कि 0.055 मीटर आती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल। यू कैन फाइंड दैट केस 4 जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, उसमें एक ही फॉर्मूले के इर्द गिर्द सारा न्यूमेरिकल फिर घूमता रहता है, ठीक है। केस 4 आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड्स दिए रहते हैं, साइनसोइडल रोड सरफेस और वेवलेंथ करके, सो अकॉर्डिंगली ये सॉल्व हो जाता है, ओके। और केस 4 यूनिवर्सिटी का बहुत ही फेवरेट केस है जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर आप भी रिसेंट पेपर्स देखोगे तो आपको केस 4 के ऊपर न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ओके। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप ये केस 4 कर रहे हो तो थोड़ा इसको और केयरफुली करिए, ठीक है। वैसे तो सारे केसेस आपको अच्छे से करने हैं, बट केस 4 पे ज़्यादा केयरफुल रहना है आपको। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट, देन आई विल रीड इट फॉर यू। First read this question. Now, did you find any difference in this numerical? I don't think so. All other values are same except the speed of vehicle. Okay, you can see mass is 1200 kg, which is being the same in the previous numerical. It is traveling on a road surface which varies sinusoidal, so this is a keyword. Amplitude is 0.05 meter, which is again given in the previous numerical. Wavelength is 6 meter, which is again given in the previous numerical. Suspension has a spring constant, that is stiffness is the same value given in previous numerical. Damping ratio is 0.5, which is again given in same value in the previous numerical. Only the vehicle speed is 100 km per hour. Earlier it was 20 km per hour. Now I have taken it 100 km per hour. Okay, just this value has been changed. Secondly, why it belongs to case 4? Because of these two keywords. The surface varies sinusoidally and it has a what? Wavelength. Okay, so these two keywords are given. स्पीड का वैल्यू सिर्फ आपको चेंज करके दिया है, तो मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है। इसके अलावा सारे के सारे स्टेप्स
सेम है, आप देख सकते हो ओमेगा 2 पाई एफ एंड एफ इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय लैम्बडा, तो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ओमेगा निकाल लिया है। ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, के और एम आपको गिवन है तो आपने ओमेगा एन निकाल लिया है। आर इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन, तो ये रेशियो आ गया है। इसके बाद एक्स बाय वाई का ये फॉर्मूला है और उसके अंदर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जैसे हमने पहले किया था और हमको यहाँ पे एक्स का वैल्यू मिल गया, मतलब व्हीकल का डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि दिस इज 99% सिमिलर न्यूमेरिकल एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ speed or velocity is changed. I request all of you to let's go to the next question. Please read this question and this statement has been cut. जो अंडर ये मैंने कट किया है इसको कुछ कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको इतने सा ही पार्ट रीड करना है, ठीक है। प्लीज रीड इट फर्स्ट, देन आई विल रीड इट फॉर यू। Okay, so the spring of automobile trailer is compressed by 0.1 मीटर। तो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो यूज़ हो रहा है वो ऑटोमोबाइल ट्रेलर में यूज़ हो रहा है। तो जब ट्रेलर इनिशियली स्टेट में है तो 0.1 मीटर कॉम्प्रेस हो गया है ड्यू टू इट्स ऑन वेट, और उसका खुद का वेट कितना है 500 kg, मतलब खुद के सेल्फ वेट की वजह से वो कॉम्प्रेस्ड हो गया, उसको किसी ने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके कॉम्प्रेस नहीं किया है। तो ड्यू टू सेल्फ वेट, सो द सेल्फ वेट वैल्यू इज 500 kg and it is being compressed by 0.1 meter. Find the critical speed. So they are asking you to find out the critical speed. When the trailer is traveling over a road with a profile approximate by a sine wave of 0.08 meter, over here it is a meter लिखा नहीं है, आप लिख लेना, एंड द वेवलेंथ ऑफ 14 मीटर्स, तो आपको वेवलेंथ भी दिया है और रोड सरफेस का प्रोफाइल साइन वेव में दिया है, मतलब ये केस 4 है। व्हाट वुड बी द एम्पलीट्यूड इफ द ट्रेलर वाज टू मूव एट 60 किलोमीटर पर आवर। देखो अब ये क्वेश्चन है ना ट्रिकी वे में दिया गया है। ओके, ट्रिकी वे में क्यों है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो आपको इस क्वेश्चन में डैम्पिंग रेशियो कहीं पे मेंशन नहीं है। अगर डैम्पिंग रेशियो कहीं पे भी मेंशन नहीं है तो जीटा का वैल्यू 0 लेंगे, ये हमने पहले भी सीखा है। ओके, सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ जीटा शुड बी 0 बिकॉज द डैम्पिंग रेशियो इज नॉट गिवन। सेकेंडली, पहले तो वो पूछता है कि व्हाट इज द क्रिटिकल स्पीड, फिर पूछता है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड इफ द स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस न्यूमेरिकल में दो केस है। केस 1 जिसमें हम क्रिटिकल स्पीड फाइंड करेंगे फॉर द गिवन पैरामीटर्स। केस 2 जिसमें हम एम्पलीट्यूड ऑफ व्हीकल फाइंड करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे व्हेन द व्हीकल इज मूविंग विद द 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो अकॉर्डिंगली हमको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और मैंने ये ड्राइंग आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है जस्ट। तो यहाँ पे वेवलेंथ 14 मीटर है, साइन वेव फॉर्म से मीन से लेके उसका पिक तक का डिस्टेंस 0.08 मीटर है। क्वेश्चन में कहीं पे भी डैम्पर के बारे में बोला नहीं है, तो स्प्रिंग और मास एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। ड्राइंग नहीं बनाया तो भी चलेगा एग्जाम में, दैट इज़ नो कंपल्शन इन द एग्जाम, ठीक है। अभी पहले तो मैं क्या फाइंड करूँगा कि क्रिटिकल स्पीड कितनी है, ठीक है। सो पहले तो मैं बता दूँ, जब भी क्वेश्चन में क्रिटिकल स्पीड पूछा है मतलब वो स्पीड पूछ रहा है जिस पे सिस्टम आपका हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होगा। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, if in exam they ask you to find out the critical speed, it means they are asking you to determine the speed at which the body will vibrate with the highest peak amplitude. Okay, and I told you in the previous cases also, when the body vibrates with the maximum amplitude,
then that condition is called as a resonance condition. I hope you remember I covered this in the case 2 of module 5. So that condition, when the body is vibrating with the highest amplitude, then it is called as what? Resonance. So under resonance condition, value of R should be equal to 1, that we are aware of it. And we know that R can also be equal to omega by omega n, and you can equate that equal with the 1. So when you do this, omega by omega n is equal to 1, then omega is equal to omega n. I hope you just understand this. क्या किया है मैंने? Just omega n into 1 कर दिया है. And we know that omega is nothing but equal to what? 2 pi f, and omega n can be equal to 2 pi fn. बरोबर? ये 11-12 फिजिक्स का फॉर्मूला है रेडियंस पर सेकेंड को कैसे प्राप्त करना है अगर हर्ट्ज में दिया है तो दैट कैन यू कैन गेट 2 pi f से. Now 2 pi will get cancel out, so f is equal to what? Fn. Am I clear? So f में f का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा होता है ना. तो अगर आपने f इज इक्वल टू Fn किया तो वो टाइम पे अगर वेलोसिटी बाय लैम्बडा करोगे तो जो वेलोसिटी होगी क्रिटिकल वेलोसिटी होगी. ये क्यों होगी? क्योंकि आप f इज इक्वल टू Fn कर रहे हो. f इज इक्वल टू Fn कर रहे हो मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा n कर रहे हो. और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा n कब होता है? जब रेजोनेंस कंडीशन होता है. ये देख रहे हो यहाँ से. तो उस केस में अगर आपने f की वैल्यू वेलोसिटी बाय लैम्बडा डाली तो वो टाइम पे वेलोसिटी जो होगी वो क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, इसलिए मैंने vc लिखा है. सो ओवर हियर vc स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, सो दिस बिकम्स vc बाय लैम्बडा विच इज इक्वल टू Fn. So that is being marked as a equation 1. Okay, so we need omega n first, because once you have to determine Fn, then you should know omega n. Now let me tell you, till date such concept has not arisen, that's why I didn't tell this concept. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ. ओमेगा n का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है अंडर रूट g बाय डेल्टा एस टी. ओके, एक फॉर्मूला हमने देखा है अंडर रूट k अपॉन m, ठीक है. और एक ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट g अपॉन डेल्टा एस टी, वेयर g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज बीन डिफाइंड बाय न्यूटन 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, डेल्टा एस टी इज कॉल्ड एज अ स्टैटिक डिफ्लेक्शन. तो इस स्टैटिक डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बॉडी का और स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट. ओके, दिस इज व्हाट स्टैटिक डिफ्लेक्शन. ओके, तो अब इस क्वेश्चन में वो कंडीशन थी. इस क्वेश्चन में क्या था कि ये 0.1 मीटर से खुद ही डिफ्लेक्ट हो जाता है ड्यू टू सेल्फ वेट. तो इस केस में मैंने ओमेगा एन अंडर इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय डेल्टा एस टी लगा सकता हूँ, एंड दैट विल बी जी इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेल्टा इज 0.1 मीटर विच इज गिवन, सो यू कैन गेट ओमेगा एन 9.90 रेडियंस पर सेकेंड. नाउ यू मे आस्क सर अंडर रूट के बाय एम क्यों नहीं यूज़ किया? तो आप क्वेश्चन में देखो आपको k का वैल्यू किधर दिया है? स्प्रिंग स्टिफनेस आपको मेंशन ही नहीं है, तो हाउ कैन यू गेट द ओमेगा एन? एंड इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन दे हैव गिवन यू दिस वैल्यू, सेल्फ वेट ड्यू टू डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट. एम आई क्लियर? सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन. सो आई टॉट यू दिस न्यू कॉन्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ओमेगा एन. ओके, सो ओवर हियर यू गॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन which is 9.90 radians per second, and put this omega n over here, so you can get Fn. So Fn is 1.576 hertz, and you can put Fn in equation 1 over here. Finally what will happen? Vc by lambda is equal to Fn, which is 1.576, which I have written over here, and you know the value of lambda which is given in question 14 meter. So Vc will be equal to 1.576 into 14. So you will get the critical velocity as a 22 meter per second. Okay, so this is all about the case 1 in the numerical. How we have proceed you can see here. So पहले क्या बोला है? क्रिटिकल स्पीड फाइंड करो. क्रिटिकल स्पीड फाइंड करने के लिए मैंने आपको हिंट बताया कि रेजोनेंस 1 ले लो, r का वैल्यू 1 ले लो, एंड अकॉर्डिंगली ये रिलेशन सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करो एंड वैल्यूज फाइंड कर लो. ओमेगा एन के लिए नया कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया. अब केस 2 में वो क्या बोलता है कि अगर व्हीकल के सारे पैरामीटर सेम है और स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? आई मीन टू से वाई का वैल्यू सेम है, लैम्बडा सेम है,
बट वेलोसिटी, अब क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी थी 22.069 मीटर पर सेकेंड। बोलता है अब स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले इस 60 किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। ओके, so this will be 60 into 5 by 18. I hope you know how to convert kilometer per hour into meter per second. तो अब वेलोसिटी अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो एम्पलीट्यूड कितना है, तो यही है ना रेशियो फार्मूला, ये हमने पहले के न्यूमेरिकल्स में भी देखा है। ओके, अब इस रेशियो फार्मूले में क्या किया है, जीटा का वैल्यू 0 डालना है, ठीक है। आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर ओमेगा बाय ओमेगा एन, ओमेगा 2 पाई एफ, और एफ के लिए वेलोसिटी बाय लैम्बडा, और वेलोसिटी बाय लैम्बडा में वेलोसिटी जो है केस 2 में जो गिवन वेलोसिटी है वो सब्स्टिट्यूट करनी है इन मीटर पर सेकेंड। तो आप देख लो ये वैसे सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, अपॉन लैम्बडा, तो आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी। आपने ओमेगा एन ऑलरेडी निकाल रखा है तो उससे आपको आर मिल जाएगा, और एक बार आर मिल गया इस फॉर्मूले में जाओ, वाई की वैल्यू आपको पहले से मेंशन है, आर आप फाइंड करने वाले हो, जीटा की वैल्यू 0 डाल दो, ठीक है, पूरे को सॉल्व करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 0.186 मीटर। ओके, सो ये न्यूमेरिकल में दो केसेस थे। केस 1 में हमको क्या करना था, क्रिटिकल स्पीड फाइंड करनी थी। केस 2 में क्या करना था, स्पीड ये सब दिया था सेम लाइक ऑफ योर मॉड्यूल, सॉरी न्यूमेरिकल 1 एंड 2, ठीक है, पार्ट 4 का न्यूमेरिकल 1 एंड 2, और हमको एम्पलीट्यूड निकालना था। इसमें जीटा की वैल्यू 0 दी गई है, मेक श्योर आप जीटा को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर डैम्पिंग रेशियो के बारे में कुछ बोला ना गया हो तो वी ऑलवेज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ जीटा एज 0। ओके, नाउ विद दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सी आई एम कवरिंग ऑल द बॉम्बे यूनिवर्सिटी न्यूमेरिकल्स। ओके, तो आप देख सकते हो अभी तक हमने 3 न्यूमेरिकल कवर किए हैं। ओके, और ये तीनों न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम टाइम आ चुके हैं। नाउ दिस इज द अनदर न्यूमेरिकल जो यूनिवर्सिटी में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली, देन आई विल रीड इट फॉर यू, प्लीज रीड इट। Okay, so let me read this statement for you. A 35 kg flow monitoring device is placed on a table in a laboratory. A pad of stiffness 2 into 10 to 5 Newton per meter and a damping ratio 0.08 is placed between the apparatus and the table. The table is bolted to the laboratory floor. Measurement indicate that the floor has a steady state vibration amplitude of 0.5 mm at a frequency of 30 Hz. What is the amplitude of acceleration of the flow monitoring device? Now, ये न्यूमेरिकल एक्चुअल में केस 4 का है बट इसमें कीवर्ड्स मेंशन नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखो, ये एकदम टिपिकल न्यूमेरिकल है। ओके, अब इसके अंदर केस 4 की यूज़ हुआ मैं वो बताता हूँ, क्योंकि इसमें रिलेटिव एम्पलीट्यूड है, इसमें फ्लोर भी एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट हो रहा है, और तुम्हारा जो ये है मास 35 kg फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस, वो जो मास है वो भी एक एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट हो रहा है। तो अगर आपने केस 4 का फॉर्मूला देखा रहेगा तो हम क्या लिखते हैं, एम्पलीट्यूड रेशियो x अपॉन वाई, क्या लिखते हैं, एम्पलीट्यूड रेशियो x अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई का मतलब क्या है, मास x अमाउंट से वाइब्रेट हो रहा है, y मतलब जिस सरफेस पे वो रखा गया है वो एलिमेंट y अमाउंट से वाइब्रेट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे केस 4 का कॉन्सेप्ट आने वाला है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मास की वैल्यू 35 kg है, स्प्रिंग को ही इन्होंने पैड बोला है जिसका स्टिफनेस दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर, तो आपको k की वैल्यू दी गई है, जीटा आपको मेंशन है, y आपको मेंशन है, y मतलब जो एलिमेंट फ्लोर के कांटेक्ट में है उसका डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आपको 0.5 mm करके दिया गया है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज दी गई है, दैट इज f की वैल्यू दी गई है, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस निकालना है,
तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें दो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, एक मास का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है एक्स अमाउंट के साथ, दूसरा मास को एक एलिमेंट से कनेक्ट किया गया है और वो एलिमेंट ग्राउंड पे रखा गया है और बीच में पैड रखा गया है, तो पैड मतलब स्प्रिंग आ गया। ओके, सो अगर आप ये ड्राइंग को ध्यान से देखेंगे, लेट मी टेक यू टू दैट ड्राइंग जो हमने स्टार्ट में देखा था, तो ये ऐसा वाला अरेंजमेंट है, बट इसमें अभी वेवलेंथ और बाकी की वैल्यूज़ दी नहीं गई है, बट ये वैल्यूज़ दी गई है। तो मास जो है वो तुम्हारा फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस है जिसका डिस्प्लेसमेंट एक्स अमाउंट से होगा। उस मास को फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस को टेबल पे रख के और टेबल को ग्राउंड पे कनेक्ट किया गया है। तो आप देख सकते हो ये ऐसे वाले अरेंजमेंट है, तो जिसमें जो ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट होगा वाई से, वही इसका एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा जो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है, बट बीच में पैड है मतलब स्प्रिंग है और डैम्पर है, तो उस वजह से मास का डिस्प्लेसमेंट अलग अमाउंट से होगा। ओके, सो दिस इज हाउ द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट इज बिलोंग टू योर केस। ओके, सो लेट्स गो बैक टू दैट न्यूमेरिकल अगेन। तो आपको सारी गिवेंस दी गई है, क्या करना है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो आपको ओमेगा मिल जाएगा। अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसका वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रखो। इफ दे आस्क यू टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन देन द फॉर्मूला इज ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये रहा एक्स अपॉन वाई का फॉर्मूला जो कि हमने देखा। ओमेगा एन अंडर रूट के बाय एम से निकालेंगे, जिसमें स्टिफनेस और मास आपको दिया है तो ओमेगा एन मिल जाएगा। आर इज इक्वल टू ओमेगा बाय ओमेगा एन, तो आपको ओमेगा और ओमेगा एन दोनों पता है तो आर मिल जाएगा। अब सारी वैल्यूज उठा लो, y उठा लो और इसमें डाल दो, तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा। और एक्सेलरेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स करके, तो ओमेगा आपने ऑलरेडी निकाला था, उसका स्क्वायर कर दो और उसमें x मतलब ये एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछा होता तो उस टाइम पे फॉर्मूला होता ओमेगा इंटू एक्स। ठीक है, एक बार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस पूछा था। मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस, तीन चीज़ें पूछी थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस मतलब x, ये हमने निकाला है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये भी निकाला है। अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो मॉनिटरिंग डिवाइस पूछा तो फॉर्मूला होगा ओमेगा इंटू एक्स, स्क्वायर नहीं आएगा वेलोसिटी में, इट विल बिकम ओमेगा इंटू एक्स। ओके, so this is the typical question which has appeared in the university many times, and this is nothing but the part of case 4 only. Okay, so I have covered all the university questions which has got appeared in the previous papers. I request all of you to go through the each and every concept, write down these things in your notebook. Still, if you feel any doubt, if you find anything complicated things for you, so you can ask your doubt on a official WhatsApp group or personally on my WhatsApp number. So thank you so much all of you, take care.